Hello students, myself Ashik Raina. Today my topic is ecosystem structure and function. As I already explained the previous lecture which was ecosystem definitions and ecosystem types. Today my topic is ecosystem structure and function. What is ecosystem structure? Ecosystem structure, it is basically a network of interaction. ये एक इंटरेक्शन होती है, नेटवर्क ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक and biotic components of the ecosystem, or we can say the abiotic and biotic components of the system. जब एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो ये इंटरैक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं. इफ there is no interaction between the abiotic and biotic components of the ecosystem, or we can say abiotic and biotic components of the system, there will be no structure of the ecosystem, and we can say the ecosystem is unstable. So इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज द नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन. इसमें इंटरेक्शन होती है एक एबायोटिक कंपोनेंट्स की और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स की. जब ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये इंटरेक्शन की जो नेटवर्क होती है, ये कितनी बड़ी नेटवर्क होगी या ये कितनी छोटी नेटवर्क होगी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर. इस इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में आपका पहले आता है कितने ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है. ऑर्गेनिज्म्स मींस हाउ मच द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, what type of biotic component is present in the ecosystem, that is called species richness. How much the number of species, how much the number of plants, how much the number of animals, or how much the number of microorganisms are present in the ecosystem. They all plants, animals and microorganisms are wholly and solely depends upon the abiotic factors. If there is any problem with the abiotic factors, thereby this effect will be upon the living organisms also. So the organisms present in the ecosystem means the species richness of the ecosystem. उसके बाद आता है इस इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मतलब ये होता है हाउ मच द नंबर ऑफ, how much the size of the physical material present in the ecosystem. उस physical material में आता है आपका organic material and inorganic material. Inorganic material में आता है आपका how much the carbon, how much the oxygen, how much the hydrogen is present in the ecosystem. And organic means how much the carbohydrates, how much the lipids, how much the fats are present in an ecosystem, so that these organic and inorganic materials are exchanged among the organisms. जब ये exchange होते हैं organic and inorganic material किन में, among the organisms, so these organisms will survive after the exchange of the organic and inorganic material between the abiotic and biotic components of the ecosystem. उसके बाद आता है रेगुलेटर्स. अगर हम रेगुलेटर्स की बात करते हैं, इस रेगुलेटर्स इसमें आपका आता है वाटर अवेलेबिलिटी, टोपोग्राफी, टेम्परेचर और लाइट. These are called the regulators of the ecosystem. If there is no regulators of the ecosystem, ecosystem will not be stable. इससे क्या होता है, इससे इकोसिस्टम की रेगुलेशन होती है. लाइट, वाटर अवेलेबिलिटी, टोपोग्राफी और टेम्परेचर, इससे इकोसिस्टम की रेगुलेशन होती है. इनको हम इकोसिस्टम रेगुलेटर्स कहते हैं. अगर हम इसी इकोसिस्टम की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, each ecosystem, whether it is pond ecosystem or we can say whether it is terrestrial ecosystem or whether it is aquatic ecosystem, each ecosystem has two main components. हमेशा एक इकोसिस्टम में दो मेन कंपोनेंट होते हैं. उसमें आपका पहला कंपोनेंट आता है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट मींस वो कंपोनेंट जो एबायोटिक इन नेचर होंगे,
जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे उसमें आपका पहला फैक्टर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स रेन, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। These are called the climatic factors. Climatic factors means wind type, humidity type, temperature type and rain type. उसके बाद आता है आपका एडापिक फैक्टर्स। एडापिक फैक्टर्स मीन्स pH of the soil, texture of the soil, or we can say minerals. Texture of the soil or pH of the soil is wholly and solely depends upon the number of living organisms present or number of living organisms survival on this type of soil or survive on the adaptive factors also. यहाँ पे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और एडापिक फैक्टर्स दे आर इंटररिलेटेड विद द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये आ गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा आता है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स which are living components or we can say which are living organisms present in the ecosystem like plants, animals and microorganisms। ये तीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में होते हैं एज ए बायोटिक कंपोनेंट्स। इन प्लांट्स में या इन एनिमल्स में और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इन्हीं बायोटिक कंपोनेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्रोड्यूसर, सेकंड टाइप इज कंज्यूमर एंड थर्ड टाइप इज डिकम्पोजर। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स? Producers means which produce the material, which produce the food for the next consumers or we can say next decomposers। और इस प्रोड्यूसर में आपका आता है autotrophs और we can say producers are always called as autotrophs। इसमें आते हैं आपके green plants, green plants or we can say these are called the autotrophs। Why these are called autotrophs? Because they manufacture their own food। Auto means self and trophs means feeder। वो अपना ग़िज़ा, या मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, they manufacture their own food with a process which is known as photosynthesis। And second one is called consumer। Consumer is that group of we can say living organisms which directly or which wholly and solely depends upon the producers। इस कंज्यूमर में आते हैं फर्दर टाइप। पहला आपका आता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा टर्शियरी कंज्यूमर एंड चौथा क्वाटरनरी कंज्यूमर। इनको हम टर्शियरी कार्निवोर भी कहते हैं या सेकेंडरी कार्निवोर या प्राइमरी कार्निवोर या हर्बिवोर्स। ये इसके डिफरेंट टाइप्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली कंज्यूमर्स। और उसके बाद ये तीसरा ग्रुप आता है डिकम्पोजर्स। इनको हम सेप्रोट्रॉफस भी कह सकते हैं। डिकम्पोजर्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफस बिकॉज दे फीड अपॉन द रॉटन मटेरियल, सो दैट दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफस। डिकम्पोजर्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया और फंजी। ये आ गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम और ये आ गया बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इफ दे मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी करता है। जस्ट हम एक एग्जांपल ले लेंगे टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं या हम सनलाइट की बात करेंगे, इस सनलाइट में क्या होता है, ये जो सनलाइट है ये किन पे पड़ती है, प्लांट्स पे। तो अल्टीमेटली प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो वी कैन से द सोलर एनर्जी और सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू द chemical energy or we can say it is converted into the mechanical energy। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ये ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफस दे मेक देयर ओन फूड और यही प्लांट्स हम कंज्यूम करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स।
फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये कंज्यूम करते हैं वो फूड जो प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन फोटोसिंथेसिस देयर इज द यूजेज ऑफ सनलाइट। जब ये एनर्जी इस प्रोड्यूसर से इस कंज्यूमर में ट्रांसफर हुई है तो अल्टीमेटली ये जो कंज्यूमर्स होते हैं इसमें क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आते हैं या टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जितनी एनर्जी ये टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है या प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसके बाद ये सारे कंज्यूमर्स क्या दे फीडेड बाय द डिकम्पोजर्स। उसके बाद ये कंज्यूमर्स डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करते हैं, दीज आर कॉल्ड बैक्टीरिया और फंजाई। तो उस डिकम्पोजिशन के बाद क्या हो जाता है, जितने भी ये कंज्यूमर्स होते हैं या जितने भी ये प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल, और वी कैन से द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर फर्दर एडेड इनटू द सॉइल, and this soil makes the medium for the plants also, and these plants again use the sunlight, manufacture the food and transfer this food from producers, consumers and decomposers. Thereby they make a cycle. They make a cycle which is known as biogeochemical cycle, and if this biogeochemical cycle is continuously operate into the ecosystem, after that we say that this ecosystem is stable as well as function properly. So it is about the ecosystem structure and ecosystem function. If there is any doubt regarding the topic, please leave the comment in group and I try at my best to clear the concept about ecosystem structure or ecosystem function. Hope you understand it very well. Thank you. Have a nice day.